الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی خیر البشر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا خیر خلق اللہ یا محمد المصطفیٰ یا سید العالمین یا خاتم النبین یا سید الصالحین سید المرسلین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما عبدا قائم علیک والآلک واولادک واصحابک جمیع جد امجدک جمیع اہل بیتک جمیع علماء صلحائک جمیع مشایخ یا حبیب اللہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما عبدا قائما. آج ایک ہی موضوع ہے میرا, صرف ایک حدیث بس. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک قول مبارک, ایک حدیث مبارک تفصیل سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. صرف ایک ہی حدیث گرام آپ سنیں گے اور زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. یہ میں آپ تمام ٹیپو سلطان ویلفیئر ٹرسٹ کا چیئرمین, سیکریٹری اور تمام نوجوانوں کا اور جناب سید محمد شفیع اشرفی ان کے مرید, ان کا تمام داندیلی کے نوجوانوں اہل سنت والجماعت کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ بندہ ناچیز فقیر حقیر کو یہاں بلایا. مجھے کس نے بلایا, کیسے بلایا, یہ سلسلہ کہاں سے کہاں تک جاتا ہے خدا ہی جانے. میں یہاں آیا کیسے, آپ جمع ہوئے کیسے, اسٹیج پر علماء اکرام کس طرح سے رونق افروز ہیں, پیران طریق رونق افروز ہیں, یہ خدا ہی جانتا ہے. اپنا برنامہ بندے ناچیز کہاں اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسٹیج کہاں. میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن کرم ہے میرے مصطفیٰ کا کہ مجھے کرام فرمایا. بس ایک ہی حدیث غرامی آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں جس میں سب کچھ بیان ہوگا. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما بارزا للناس. میں اس لیے لکھ لایا ہوں کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے, اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. اور صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ وہ حدیث بیان کرنے سے کتراتے تھے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے. اس لیے میں لکھ لایا ہوں تاکہ پوری حدیث غرامی کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. ایک ایک لفظ کو آپ کو سننا ہوگا. حدیث میں بیچ میں مفہوم ہے کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, اور 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے. اس حدیث میں یہ بات ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے. قیامت کب آئے گی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, بارش کب برسے گی, کون کب پیدا ہوگا, کب مرے گا, اس کا علم اللہ کو ہے. لیکن ہم سنی والعقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ کا علم ذاتی ہے, اور اس کے بتانے سے محبوب ہمارا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اللہ والے بھی جانتے ہیں. یہ ہمارا یقین ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے اور اس کے دینے سے اللہ والے اسے پا لیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے, تفصیل سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ حدیث بیان کرنے والا راوی کون ہے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث کے راوی کون ہے, ابی ہریرہ ہیں. ان سے زیادہ حدیثیں کسی نے بیان نہیں کی. 5774 حدیثیں انہوں نے بیان کی. اور حدیث میں یہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے, لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے بتانے سے اللہ والے
जानते हैं। अब देखिए अबी हुरैरा क्या बयान फरमा रहे हैं। 5 चीजों के लिए सिर्फ अल्लाह को है। गौर करेंगे, सुनेंगे, ख्याल करेंगे। अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दिया है और मैं समझता हूं कि पूरा आशिकों का मजमुआ है। इसके रसूल को समेट कर यहां पर आप जमा है। जब इसके रसूल को समेट कर जमा है और सुनाने वाला भी गुलामी नबी है, कोई मौलाना नहीं, कोई आलिम नहीं, कोई मुफस्सिर नहीं, कोई मुहद्दिस नहीं, बस इतना जान लो कि गुलामी नबी है। उनके इश्क में गिरफ्तार हूं, इसलिए आपने मुझे बुलाया है। अगर उनका इश्क न होता तो कोई मुझे न बुलाता। हदीस में है कि 5 चीजों के इल्म सिर्फ अल्लाह को है। और रावी कौन है? हजरत अबी हुरैरा है। हजरत अबी हुरैरा का नाम ये बता रहा है कि सरकार के इल्म गैब है। जो रावी है वो रावी का नाम खुद बता रहा है कि सरकार इल्म गैब जानते हैं। उनका नाम कोई मुहद्दिस बयान नहीं करता। उनका जो असल नाम है कोई मुहद्दिस बयान नहीं करता। हर कोई मुहद्दिस हो या मुफस्सिर हो या आलिम हो या मौलवी हो, बयान करने वाला हो, यही नाम से बोलेगा। इसलिए कि जो जुबाने मोहम्मद से निकला उसे कौन मिटा नहीं सकता। कयामत तक कोई नहीं मिटाएगा। उधर से सैयदना अबी हुरैरा आ रहे हैं और उधर से मेरे सरकार जा रहे हैं। दूर से अबी हुरैरा देखा कि इधर से सरकार आ रहे हैं। उनके हाथ में एक बिल्ली का बच्चा है। कहीं सरकार न देख ले, आपने वो बिल्ली का बच्चा अपने दामने मुबारक में छुपा लिया। और जब सरकार बिल्कुल करीब आ गए तो आपने सरकार ने फरमाया, ऐ अबी हुरैरा। अबी की मानी है बाप, अबी की मानी है बाप और हुरैरा का माना है बिल्ली का बच्चा। ऐ बिल्ली के बच्चे के बाप। वो दामन में छुपा कर आ रहे हैं और सरकार की नजर बता रही है। रावी बयान कर रहा है कि मेरा नाम खुद इस बात का सबूत है कि सरकार इल्म गैब जानते हैं। खुदा के बताने से सरकार खुद इल्म गैब जानते हैं। ये अबी हुरैरा जो सरकार की मजलिस में हमेशा रहा करते हैं और सुना करते हैं, बारगाह रसूल में आए। मेरे आका की बारगाह में पहुंचे और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे जो सुनता हूं मुझे याद नहीं रहता। आपसे जो सुनता हूं मुझे याद नहीं रहता। अब देखिए जरा गौर कीजिए। अबी हुरैरा फरमा रहे हैं, आपसे जो सुनता हूं मुझे याद नहीं रहता। अब सरकार ने उन्हें कोई दुआ नहीं सिखाई, कोई दुआ या कलमात नहीं सिखाए। चाहते तो अबी हुरैरा खुदा की बारगाह में दुआ मांगते, अल्लाह ताला मुझे याद नहीं रहता, कुव्वत हाफिजा तेज कर दे। लेकिन अबी हुरैरा का यकीन है जो कुछ मिलता है सरकार की बारगाह में मिलता है। इससे कहा, या रसूलल्लाह कुव्वत हाफिजा कमजोर है, इसे तेज कर दीजिए। अब सरकार कोई दुआ या कलमात नहीं सिखा रहे, उनके सर पर अपना मुबारक हाथ रखकर दुआएं नहीं मांग रहे। अबी हुरैरा साहब ने फरमाया, ऐ अबी हुरैरा, अपनी चादर को फैला दो, अपनी चादर को फैला दो। इस हदीस को मैं बयान कर रहा हूं, 3-4 मौके पर बयान करते जा रहा हूं और जैसे जैसे बयान करता हूं, अब मैं फिर नीचे बैठूंगा तो मुझे याद नहीं आता। जब सरकार की कुर्सी पर बैठा हूं सरकार बता देते हैं, बगैर किसी किताब के पढ़े जब बैठता हूं कुर्सी पर उनका नाम लेता हूं और गौसे लाज़िम की मदद मांगता हूं तो मेरा दिमाग खुल जाता है, सीना खुल जाता है। आप सोचते जाएंगे, ख्याल करते जाएंगे, सोकर नहीं सुनेंगे, जागते सुनना। और आशिक कभी सोता नहीं, जागता ही रहता है, उसका दिल जागता है, इसलिए इसके मोहम्मद से पुरनूर होता है। तो वो कैसे सोए? यहां भी नहीं सोएगा, कब्र में नहीं सोएगा। जहां से के मुस्तफा होता है यहां भी जागता है, कब्र में भी जागता है और कयामत में भी सुर्ख रोशन होकर जाएगा।
देखा सरकार ने फरमाया, ए अबी हुरैरा अपनी चादर को फैला दो। चादर फैलाएगी। अब दो तीन बातें मैं समझा रहा हूं, आप गौर करेंगे। मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ खाली है। क्या है? मुबारक हाथ खाली है, उंगलियां फैली हुई हैं, पांचों उंगलियां फैली हुई हैं। हाथ में क्या है? सरकार का हाथ खाली है। गो खाली नजर आता है लेकिन दोनों जहां की दौलत इसमें है। बज़ाहिर खाली है लेकिन दोनों जहां की दौलत इस हाथ में है। अब खाली हाथ, एक सहाबी जब हदीस बयान करते हैं तो हाथ नहीं करते, एक सहाबी जब हदीस बयान करते हैं तो हाथ नहीं करते। वो इसलिए कहते हैं कि मैं हाथ नहीं करता उस तरह से, इसलिए कि मेरा हाथ वैसा नहीं है, मेरा हाथ उनके जैसा नहीं है। और दूसरा सहाबी हाथ करके दिखाता है तो कहता है हाथ तो वैसा हाथ नहीं है, लेकिन इस हाथ को वो हाथ लग जाए तो करामत वाला बन जाता है। कुव्वत हाफिजा मांगा गया, सरकार ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, मुट्ठी बंद कर ली, चादर में डाल दिया। अबू हुरैरा देख रहे हैं, अबू हुरैरा देख रहे हैं, कुछ भी नहीं, मुट्ठी बंद कर ली, कुछ भी नहीं रहे, हाँ मुट्ठी में कुछ भी नहीं पकड़ा, मुट्ठी बंद कर ली और चादर में डाल दिया और कहा अबू हुरैरा सीने से लगा लो। ईमान देखिए अबू हुरैरा का, जो दे रहा है वो गैब में है। हदीस में गैब खुदा का रसूल नहीं जानता, लेकिन जो दे रहा है वो गैब में है, ले रहा है वो गैब में है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जो मांगा जा रहा है दिया जा रहा है लेकिन नजर नहीं आता, गैब में है। और ये सरकार का गैब है, ये सरकार का गैब है, गैब से दे रहे हैं। आपने कहा सीने से लगा लो। अब अबू हुरैरा से पूछा क्या आलम है? कहा या रसूलुल्लाह अब सब कुछ यूज हो रहा है, एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज, एक एक हुर्फ यूज हो रहा है। इंशाअल्लाह कयामत तक नहीं भूलूंगा, कयामत तक सिलसिला जारी ही रहेगा। मैं सोचता रहा सरकार चाहे तो यूं ही देते, सरकार चाहते तो यूं ही दे सकते, लेकिन मुट्ठी क्यों बंद कर ली? खुले हाथ से दे सकते। खुदा का रसूल हर शय पे कादिर है, यूं ही खुले हाथ से दे सकते थे, लेकिन सरकार ने मुट्ठी बंद करके कहा चादर में डाल दिया। क्यों? गौसे लाज़िम ने मदद फरमाई, ज़हन को खोल दिया, कहा मुट्ठी इस बंद दिले बंद कर लिया कि आने वाला अबू हुरैरा कुव्वत हाफिजा मांग रहा है, कुव्वत हाफिजा मांग रहा है। इस हाथ में जन्नत की भी दौलत है, दुनिया की भी दौलत है, सातों आसमान, सातों जमीनें, हिकमत है, इल्म, सदाकत, सबर, इस्तक़लाल, अज़म, हौसला, कामयाबी, सुरखरुई, इमामत, सियादत, शहादत, हर शय है, लेकिन मांगने वाला कुव्वत हाफिजा मांग रहा है। इसलिए सरकार ने इस सारी दौलत में से कुव्वत हाफिजा को समेट लिया, मुट्ठी में बंद कर लिया, चादर में डाल दिया। चाहता तो खुले हाथ से दे सकता, अगर सब दूं तो सब कुछ समाए, अबू हुरैरा पर समाने की ताकत कहाँ है? इसलिए कुव्वत हाफिजा समेट लिया और वो अबू हुरैरा को दे दिया और कुव्वत हाफिजा महफूज कर लिया। इल्म गैब नहीं तो क्या है? और फिर पूछेंगे अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बोलो, आप हमेशा अपनी दुआओं में सन 7 साल की हुकूमत से पनाह मांगते थे, सन 7 हिजरी की हुकूमत से पनाह मांगते थे। क्यों? सन 7 हिजरी आपको क्या मालूम? सन 7 हिजरी अभी आए नहीं, आपको क्या मालूम? और पनाह क्यों मांगते थे? सरकार ने इरशाद फरमाया सन 7 हिजरी में एक लड़का हुकूमत करेगा जो मेरी शरीयत के खिलाफ होगा, इसलिए अबू हुरैरा ने पनाह मांगी। ये इल्म गैब है, क्या है? ये इल्म गैब है। अब देखिए
فرما رہے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کریم فرمایا کان یومن بارزا للناس، صحابہ کا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے اور خطابت کس کی ہے؟ سرکار کی ہے. سب سے بڑے اولیاء اللہ کی کانفرنس ہے. صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. کرنی میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. کرنی کی معنی ہے میرا زمانہ، کاف کی معنی ہے صدیق کا ق، رے کی معنی عمر کا رے، نون کی معنی عثمان کا نا، اور ای کی معنی ہے علی کا ای. میرے زمانے میں صدیق ہے، میرے زمانے میں عمر فاروق ہے، میرے زمانے میں عثمان غنی ہے، میرے زمانے میں علی مرتضیٰ جیسا ہے. ان سے بڑھ کر کون اولیاء اللہ ہے؟ وہ مجموعہ جمع ہے، وہ مجموعہ جمع ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، صدیق اکبر کو بلایا، اے صدیق اکبر آؤ، اگر میں تمہیں خلافت دوں تو کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے کہا میں ساری دنیا کو صداقت سے بھر دوں گا، ساری دنیا کو صداقت سے بھر دوں گا. آپ نے فرمایا چلے جاؤ. عمر فاروق اعظم کو بلایا، اگر میں خلافت آپ کو دوں تو کیا کرو گے؟ کہا عدالت سے بھر دوں گا، عدالت سے انصاف سے بھر دوں گا. آپ نے فرمایا چلے جاؤ. عثمان غنی کو بلایا، اگر میں خلافت آپ کو دوں تو کیا کرو گے؟ عثمان غنی نے کہا سخاوت اور حیا سے بھر دوں گا. آپ نے فرمایا چلے جاؤ. پھر آپ نے شیر خدا علی مرتضیٰ کو بلایا، آپ کو خلافت دوں تو آپ کیا کرو گے؟ علی مرتضیٰ نے کہا میں بندے کے عیبوں پر گناہوں پر پردہ پوشی کروں گا، بندے کے گناہوں کی عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا. تو میرے آقا نے فرمایا مجھے خلافت دینے کا حکم اسی کو ہے جو پردہ پوشی کرے. پھر وہی ہے کہ اپنے مریدوں کے گناہوں کو چھپا کر اسے جنت میں لے جائے. خلافت اسی کو ملتی ہے کہ اپنے مریدوں کے عیبوں پر پردہ ڈھانپ لیتا ہے اور چھپا لیتا ہے اور یوں ہی جنت میں لے جاتا ہے. اور خود خدا ستار غیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈھانپنے والا ہے. یعنی مرتضیٰ سے ہی ہر خلافت کا، چاہے چشتی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے سروردی ہو، چاہے رضوی ہو، چاہے نقشبندی ہو، ہر خلافت کا سلسلہ انہی سے چلا ہے. علی مرتضیٰ سے چلا، اس لیے کہ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ عیب پوشی. وہ مجموعہ ہے، صحابہ بیٹھے ہیں اور سرکار بول رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو. پابند نہیں ہے پوچھنے پر، پابند نہیں کہ نماز کے بارے میں پوچھو، زکات کے بارے میں پوچھو، دنیا داری کے بارے میں پوچھو، طلاق پوچھو، نکاح پوچھو. پابند نہیں، جو پوچھنا ہے پوچھو. پوچھنے والا جنت کا سوال کر سکتا ہے، پوچھنے والا قیامت کی بات کر سکتا ہے، پوچھنے والا قبر کا بات کر سکتا ہے، موت کی بات کر سکتا ہے، حاضر کی بات کر سکتا ہے، غیب کی بات کر سکتا ہے. اور سرکار بول رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھو. تو معلوم ہے اس لیے بول رہے ہیں کہ سرکار غیب بھی جانتے ہیں، حاضر بھی جانتے ہیں، ورنہ کیسے بولتے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو. کنڈیشن لگاتے تھے کہ فلانا چیز پوچھی جائے، یہ نہ پوچھی جائے، غیب کے بارے میں پوچھا نہ جائے. لیکن کوئی کنڈیشن اور پابند نہیں ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لینا. لیکن صحابہ حیران ہیں، کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتا. یہ صحابہ کی مجلس ہے، ادب سے سر جھکائے ہیں، ادب سے سر جھکائے بیٹھے ہیں، ادب سے سر جھکائے بیٹھے ہیں، کوئی پوچھنے تیار نہیں ہے. یہی ادب ہے. یہ صحابہ کی مجلس، سرکار کی خطابت صحابہ کی مجلس ایک بات سکھا رہی ہے، جب بھی کوئی مرید اپنے شیخ کے بارگاہ میں پہنچے تو بادب بیٹھ جائے. جب بھی کوئی مرید اپنے شیخ کے پاس چلا جائے تو وہ بادب بیٹھے. اس کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے، اس کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے. پیر کے چہرے میں رسول نظر آتا ہے اور رسول کے چہرے میں خدا نظر آتا ہے. کیا یہ بھی بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے؟ جا کر
सरजमीन गुजरात की सैर कर लेना, हजरत शाह आलम के मुबारक दरगाह में पहुंचना। आपका मदरसा भी है, आज भी चल रहा है। अपने हयात मुबारक में खुद अपने मदरसे में दर्स दिया करते थे, खुद शाह आलम अपने मदरसे में दर्स दिया करते थे। और एक बार हुआ कि बीमार हो गए, हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए, 8 दिन मदरसा आ न सके। 8 दिन के बाद अपने दारुल उलूम तशरीफ लाए, 8 दिन के बाद अपने दारुल उलूम तशरीफ लाए। जब 8 दिन के बाद आए, बच्चों से कहा अच्छा सबक निकालो। 8 दिन के बाद का सबक बच्चों ने निकाला, बच्चों ने सबक 8 दिन के बाद का निकाला। कहा इतने पेज, इतने सफहात, इतने सबक किसने पढ़ाए? कहा हजरत आपने तो पढ़ाए। हजरत आप ही ने तो पढ़ाए। आप फरमाने लगे मैं तो बीमार हूं, 8 दिन से मैं बीमार हूं, मदरसा नहीं आया। कहा नहीं हजरत आप ही आए और आप ही पढ़ाए, आप ही ने पढ़ाया है, आप ही से हम पढ़े हैं। हजरत शाह आलम खुदा उनसे राजी, वो अपने मुबारक हाथ उठाकर बारगाह इलाही में दुआ मांगे, मौला मामला क्या है, मौला मामला क्या है? तो हाथी से गैब ने आवाज दी, ए शाह आलम जब तुम बीमार है खुदा के रसूल को गवारा ना हुआ कि मदरसे का दर्स बंद हो, इसलिए मदीना मुनव्वरा से ताजदार दो आलम मदीनतुल उलूम तशरीफ लाया करते थे और आपके दारुल में दर्स दिया करते थे। शक्ल सूरत किसकी थी? शाह आलम की थी। शक्ल सूरत किसकी थी? शाह आलम की थी। तो खुदा का रसूल जिस शक्ल में चाहे अपने आप को ढाल ले, जहां चाहे वहां जाए। शाह आलम बीमार है सरकार को मालूम, शाह आलम का दारुल उलूम कहाँ है वो मालूम, पढ़ाने का कमरा कहाँ है वो मालूम, सबक कौन सा पढ़ाना है वो मालूम, दारुल उलूम मालूम, मदरसा मालूम, शाह आलम की बीमारी मालूम, हर चीज से सरकार गैब की कैफियत रखते हैं। आज भी उस दारुल उलूम में 2 तख्तियां हैं, 2 तख्तियां एक तख्ती पर बैठी हुई है, 2 तख्तियां बैठे हुए हैं। जब मालूम हुआ कि इस तख्ती पर बैठकर सरकार ने सबक दिया है, उस तख्ती मुबारक को इज्जत और एहतराम से उठाकर बाजू रख दिया और दूसरी तख्ती बनाकर सबक देते रहे। खुद शाह आलम का बेटा बारहा आपसे सबक समझाते थे लेकिन दिमाग में आता नहीं था। अब अपने बेटे को बुलाया सबक पढ़ाने के लिए, तो बेटा बहुत तेजी और चालाकी के साथ सबक पढ़ना लगा। कहा तू तो पढ़ना नहीं जानता था, किसने सिखाया? मैं तो बीमार था। कहा आने वाला तुम्ही ने तो पढ़ाया, तुमने सर पर मेरे हाथ फेरा और मैं पढ़ने लगा। शाह आलम की सूरत में मेरा नबी रहमतल लिल आलमीन, जहां चाहे वहां जा सके, रहमतल लिल आलमीन है, वो हर आलम की रहमत है, जहां चाहे वहां चले जाए। ये और बात है कि ये आलम पसंद आया, ये और बात है कि ये आलम पसंद आया। इसीलिए कुरान कहता है वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, जान लो अल्लाह का रसूल तुम में मौजूद है। आप नमाजी है ना, नमाजी है, नमाज में कायदे में अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात में अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाह बोलते हैं, क्या नबी तुम पर खुदा का सलाम हो, रहमत हो। सलाम उसे ही किया जाता है जो करीब होता है। हर नमाजी की नमाज में मेरा रसूल है, हर नमाजी की नमाज में मेरा रसूल है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जब तक मैं कायदे में सरकार को नहीं देखता था तब तक सलाम नहीं करता था, जब देखता था तो सलाम भेजता था। हजरत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आलमे बेदारी में मैंने 32 बार हुजूर को देखा है। आलमे ख्वाब में नहीं, आलमे
بیداری میں دیکھا ہے. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب میں حدیث کا درس دیتا تھا تو سیدھے طرف دیکھتا تھا اور بائیں طرف دیکھتا تھا. جب سیدھے طرف اگر حدیث دیتا اگر آپ خوش نظر آتے تو کہا یہ حدیث صحیح ہے, اور بائیں طرف نظر آتے تو کہتا یہ حدیث غلط ہے. خود میں نے حدیث کا درس سرکار کی بارگاہ سے پڑھ کر دیکھا ہے. آج بھی مصر میں حضرت سیدنا عبد الرحمن مرشی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور ہے, اور ان کے قبر روضہ مبارک کے پر مگرمچھ کا ڈھانچہ ہے. مگرمچھ کا ڈھانچہ ہے, آج بھی ہے. کہ یہ ڈھانچہ کیسا؟ ایک بار دریائے نیل میں ایک عورت کپڑے دھونے گئی, اپنے بچے کو لے کر گئی, اور وہ دھوتی رہی, مگرمچھ آیا اس کے بچے کو نگل گیا. اکلوتا بیٹا تھا. وہ عورت روتی ہوئی بیٹھی, روتی چلے گئی کہ راستے ملاقات ہوئی. کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا مگرمچھ آیا اور میرے بچے کو نگل گیا. ارے روتی کیوں ہے؟ جب حضرت سیدنا عبد الرحمن مرشی رحمۃ اللہ علیہ بحیات ہیں, جا ان کی بارگاہ میں چلے جا. چلے گئی. کہا کیا ہوا؟ حضرت میرا اکلوتا بچہ مگرمچھ نے نگل لیا. آپ نے اپنے مرید کو بھیجا, جا دریائے نیل کے کنارے اور کہہ دے تجھے عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ بلاتے ہیں. مرید کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مگرمچھ چلا آیا. مرید کی آواز پیر کی آواز ہوتی ہے. مرید کا ہاتھ پیر کا ہاتھ ہوتا ہے, اور پیر کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہوتا ہے, اور رسول کا ہاتھ خدا کا ہے. جسے قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. آپ کے ہاتھ پر جب بیعت کرتے ہیں محبوب, وہ ہاتھ تمہارا نہیں, کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ ہاتھ اللہ کا. بدن کس کا؟ آنکھ کس کی؟ زبان کس کی؟ کس کی؟ سوچنا سب اسی کا ہے. سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ, مر رہا تھا, بوڑھا ہو گیا تھا, یا رسول اللہ میرے پاس نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ حج ہے, نہ تلاوت ہے, نہ خیرات ہے, کچھ بھی نہیں. تو پھر کیوں آیا؟ جب کچھ بھی نہیں ہے تو میرے پاس کیوں آیا؟ کیا ہے تیرے پاس نجات کا ذریعہ؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی محبت ہے, آپ کی محبت ہے. سرکار نے فرمایا جا تو بخشا ہے. جب میری محبت ہے تو جہاں جس کے دل میں میری محبت ہے اسے جہنم نہیں جلائے گی. کیا غوث اعظم کا قصہ ابھی حضرت سید شفیع صاحب وہاں چھوٹی سی مجلس میں بیان کر رہے تھے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور کہا یا غوث پاک میرے باپ کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے, میرے باپ کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے, دعا کیجئے کہ عذاب ہٹ جائے. غوث اعظم نے فرمایا کیا وہ ہمارا مرید ہے؟ کیا وہ ہمارا مرید ہے؟ کہا میرا باپ تمہارا مرید نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیا کبھی وہ ہماری امامت میں نماز ادا کیا ہے؟ کہا یا غوث اعظم محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر روشن امیر کبھی نماز ادا نہیں کیا. کیا کبھی ہماری مجلس میں بیٹھا ہے؟ کہا نہیں بیٹھا. کیا کبھی ہمارے مدرسے کے پاس سے گزرا ہے؟ کہا نہیں گزرا. تو پھر عذاب ہونا برحق ہے, پھر عذاب ہونا برحق ہے. چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہوتا جا رہا ہے. اچانک سرخی زردی میں بدل گئی, چہرہ نیچے ہو گیا, اور آپ نے اس نوجوان سے کہا جا تیرا باپ بخشا گیا اور تیرے باپ کی قبر کا عذاب اٹھا لیا گیا. اور فرمایا آپ نے کہ میرے مدرسے میں نہیں پڑھا, میرا مرید نہیں ہوا, کبھی مجلس میں نہیں بیٹھا, کبھی امامت میں نماز نہیں ادا کیا, اسے عذاب ہونا برحق تھا. لیکن فرشتوں نے کہا اے غوث اعظم اس کے باپ نے تمہارا چہرہ ایک بار دیکھا ہے, وہ کیسے جلے جہنم ہے جو غوث کا چہرہ دیکھے. جب غوث کا چہرہ دیکھے تو خدا یاد آ جاتا ہے.
ये अल्लाह वालों की शान है। उलमा इकराम बैठे हैं, चेहरा देख लेना इबादत है। वो हाथ पे हाथ, हाथ पे हाथ, हाथ पे हाथ, हाथ पे हाथ लगता जा रहा है और कयामत तक लगता रहेगा। ये सरकार का हाथ है। ये हाथ किसी और का हाथ नहीं, सरकार का हाथ है। ये वो हाथ है जो हमेशा साथ रहेगा। ये वो हाथ है जो हमेशा साथ रहेगा, कब्र में साथ, हशर में साथ, पुलसिरात की घाटी पे साथ, हर हमेशा साथ रहेगा। देखा साहबा की मजलिस है, सरकार पूछ रहे हैं जो पूछना है पूछ लो। साहबा से इतने करामत सादिर नहीं हुए, साहबा से इतने करामत सादिर नहीं हुए जितने गरीब नवाज ने दिखाए, जितने गौसुल आज़म ने दिखाए। हमेशा उनकी बातें थी कि सरकार का चेहरा देखते बैठते। सरकार का चेहरा जन्नत है, सरकार का चेहरा कुरान है, सरकार का चेहरा कुरान है। उनका चेहरा देखना इबादत है। जब वो बाजू हटते तो सोचते क्या मैं मुनाफिक हो गया। जब सरकार की मजलिस में देखते अनवार की बारिश बरसती, रहमतों का नुज़ुल होता रहता। पूछिए सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, एक बार रसूल करीम बाहर से तशरीफ लाए, बाहर से तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने फरमाया या रसूलुल्लाह, बाहर बारिश हो रही है और आपका दामन नहीं भीगा। बाहर बारिश हो रही है, आपका दामन नहीं भीगा। मेरे आका ने फरमाया क्या अपने बदने अनवर पर तुम मेरा तहबंद ओढ़े बैठी हो? फरमाया हाँ या रसूलुल्लाह। तहबंद निकालो। तहबंद निकाले तो देखा बाहर चिलचिलाती धूप है। कहा डाल लो तहबंद मुबारक। फिर तहबंद मुबारक ओढ़ ली तो देखा फिर रहमतों का नुज़ुल, अनवार का नुज़ुल, जलवों का नुज़ुल, तजल्लियों का नुज़ुल। ये मेरे चादर मुबारक की निस्बत है जो तुम देख रही हो। यही चादर की निस्बत कयामत तक चलती रहेगी। कयामत तक चादर मोहम्मद की निस्बत चलती रहेगी और उसका फैज़ बढ़ता रहेगा। कोई सवाल कर पूछने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि यादव सिखाता है जब भी कोई मुरीद शेख की बारगाह में पहुंचे तो अदब से बैठे। अगर पीर पूछे तो जवाब देना, नहीं तो खामोशी इख्तियार करना सबसे बड़ी बात है। खामोशी इख्तियार करना सबसे बेहतर बात है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छा वाज बयान करते, बहुत पुरअंगीज़ पुरअसर बयान देते थे। आपके पीर मुबारक सैयदना सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का बयान दे दे, बहुत अच्छा बयान देता है। तो जुनैद बगदादी कहते हैं या हजरत आप जिंदा हैं, आपके पास मैं क्यों बयान दूं? बार बार कहते तू बयान कर, मेरा हुक्म है। और कहते आप जिंदा हैं फिर मैं कैसे बयान करूं? एक वक्त ऐसा हुआ जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में रसूलों का रसूल, इमामों का इमाम, नबियों का नबी तशरीफ लाया और फरमाया जुनैद वाज क्यों नहीं कहते? जुनैद वाज क्यों नहीं कहते? अब जब ख्वाब से बेदार हुए सोचने लगे अब खुदा का रसूल वास करने के लिए कह रहा है, अब जरूर कहूंगा। अब बोलने के लिए खुदा का रसूल मेरे ख्वाब में आया है। श्री सख्ती की बारगाह में चले, अपने पीर मुबारक के पास चले। कहां चले? अपने पीर मुर्शद को बताने चले। अभी दूर ही थे, अभी दरवाजे पे करीब वो इंतजार कर रहे थे। अभी जुनैद बगदादी दूर ही थे कि श्री सख्ती रहमतुल्लाह ने पुकार कहा जुनैद अब तो वास करोगे। तुम वाज नहीं करते थे, तुम्हें वाज कहलाने के लिए रसूल, खुदा के रसूल को बुलवाना पड़ा। खुदा के रसूल को बुलवाना पड़ा। जुनैद रहमतुल्लाह समझते थे कि सरकार मेरे ही ख्वाब में आए। उन्हें क्या मालूम है कि पीर मुर्शद खबर जानता है। पीर मुर्शद मुरीदों की दिलों की खबर रखता है, कभी बोलता है कभी नहीं बोलता। बोलना है तो बोलता है, नहीं बोलना हो तो नहीं बोलता। इसलिए सरकार कभी इल्म गैब को जाहिर करना हो तो जाहिर कर देते और जब छुपाना होता खुदा की हिकमत होती तो छुपा देते। अगर सरकार ने छुपाया है तो उसमें हिकमत, जाहिर करना है तो उसमें हिकमत, छुपाना है तो उसमें हिकमत है। कोई पूछने के लिए तैयार नहीं तो फरमाते हैं इस आता हूं रजूल यमशी, एक शख्स चलता हुआ आया, एक शख्स चलता हुआ आया। दूर दराज, ऐसा लगता था कि बहुत दूर दराज से आ रहा है। साहबा में कोई पहचान नहीं रहा है।
साहबा ने सोचा दूर दराज से लगता है, दूर दराज हमारा कोई पहचान कुर्ब जवार के इलाके का भी नहीं है और पैदल चलता हुआ आया है, लेकिन चेहरे पर पुजमुर्दगी नहीं, चेहरे पर ताजगी है, बाल काले हैं, दाढ़ी मुबारक काली है, कपड़े बहुत बड़े रौनक पुरदाब हैं। सोचा इतने दूर से आया लेकिन कोई आसार नहीं, जवान चेहरा तरोताजा है, सर के बाल काले, दाढ़ी मुबारक काली। इस बात का सबूत रहा है इन मुसलमान को चाहिए कि इबादत नौजवानी में करे। मुसलमान को चाहिए कि इल्म दीन नौजवानी में हासिल करे, इसलिए कहे कि नौजवान की एक रकात बूढ़े की लाख रकात के बराबर है। एक नौजवान की एक रकात बूढ़े की लाख रकात के बराबर है। एक नौजवान जो खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो 40 साल जितनी राह है उतने कब्र का अज़ाब उठा लिया जाता है। अब आने वाला आकर इजाजत मांग रहा है, क्या मैं अंदर आऊं, क्या मैं अंदर आऊं? सरकार इजाजत देते रहे, इजाजत देते रहे, वो पूछता रहा आऊं? आप फरमाते आजा आजा आजा। करीब दो आकर जानों से जाने मुबारक से जाने मुबारक मिलाकर बैठ गया। देखो आने वाला इजाजत मांग रहा है, आने वाला इजाजत मांग रहा है। इस्लाम सिर्फ नमाज की दावत नहीं देता, इस्लाम सिर्फ रोजे की बात नहीं करता, मजलिस के आदाब भी सिखाता है। जब भी कोई मजलिस में हाजिर हो, शेख की मजलिस जमी हो, मजलिस महफिल बैठी हो, तो वहां जाने से पहले इजाजत मांगना जरूरी है। अपने पीर की, अपने शेख की, अपने उस्ताद की क्या करेंगे आप? इजाजत मांगेंगे। अगर अंदर आने की इजाजत हो तो जाना, और जहां जगह मिले वहां पर बैठ जाना। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, इजाजत मांगे और सरकार के पास बैठे गए और आकर सवाल फरमाया, या रसूलुल्लाह मल ईमान, या रसूलुल्लाह ईमान क्या है? सवाल फरमाया ईमान क्या है? चाहते तो बोल सकते, नाम ले सकते, या मोहम्मद बोल सकते, लेकिन या मोहम्मद नहीं बोले, या रसूलुल्लाह क्या बोले? जब भी आप अपने पीर के मजलिस में जाना तो नाम नहीं लेना, जो अलकाब हूं अच्छे वो अलकाब लेकर बोलना, हजरत कहना या साहब को कुछ भी कहो। इसलिए आने वाला सिखा रहा है, जब भी मजलिस में जाएंगे क्या बोलेंगे? या मोहम्मद कहा नहीं, फरमाया या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? मेरे आका ने फरमाया कालल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व लिकाइहि व तुमिन बिल बासिल आखिर। अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, और कयामत के दिन खुदा को मिलने पर और कयामत के दिन दोबारा उठने पर ईमान लाना ईमान है। ईमान लाना ईमान है। बोलो अल्लाह की जात गैब में है क्या हाजिर है? अल्लाह गैब में है क्या? देख रहे हो? अल्लाह गैब में, फरिश्ते गैब में, रसूल मेरे आका से पहले रसूल आकर गए और आपने फरमाया रसूलों पर ईमान लाना ईमान है। ये सारे गैब में है जिसे सरकार बयान फरमा रहे हैं। और कयामत के दिन उठना है, गैब में है। कयामत के दिन दोबारा उठना किसने देखा है? आपने। सरकार बयान फरमा कयामत के दिन उठना है, इस पर ईमान लाना, ये पूरा गैब में। जन्नत पर, दोज़ख पर, पुलसिरात की घाटी पर, मीज़ान पर ईमान लाना ईमान है। सारी बातें गैब में है जो सरकार बोल रहे हैं। ये हदीस में तो ये ईमान है। और ईमान की जान क्या है? ये तो ईमान हुआ, हाथ हुए, पांव हुए, दिमाग हुआ, आंखें हुई, जुबान हुई, चेहरा हुआ, चल सकता है, हाथ है, पांव है, बॉडी है, चल सकता है। जब तक जान नहीं तब तक चल नहीं सकता। ईमान की जान इश्क़े रसूल है। जब तक इश्क़े रसूल नहीं है तब तेरा ईमान पूरा नहीं है। इसलिए सरकार ने फरमाया जब तक तू अपने माँ बाप से ज्यादा, दुनिया से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, हर शय से ज्यादा मुझे मोहब्बत नहीं करता तब तक तेरा ईमान पूरा नहीं होता। फिर आने वाला बोल रहा है आपने सच कहा, आपने सच कहा। साहबा हैरान है, सवाल भी पूछ रहा है और जवाब देने पर सच भी कहता है।
सवाल पूछ रहा है और जवाब लेने पर सच भी कहता है, हैरत में रह गए। फिर सवाल पूछा, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? मेरे आका ने जवाब दिया, काल या रसूलुल्लाह मल इस्लाम, काल इस्लाम अन तुअबदुल्लाह वला तुशरिक बि शैया व तुकीम अस्सलात व तुती ज़काल मफरूदा व तसूम रमजान, अल्लाह की इबादत करना, शिर्क न करना और नमाज को कायम करना, जो फर्ज ज़कात है अदा करना और माह रमजान मुबारक में रोजे रखना, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। आने वाले ने कहा, आपने सच कहा, आपने सच कहा। फिर पूछा, काल या रसूलुल्लाह मल एहसान, एहसान क्या है? इस्लाम और ईमान शरीयत में आ गए, इस्लाम और ईमान शरीयत का पूरा दर्स हो गया। अब आने वाला पूछ रहा है, मल एहसान, एहसान क्या है? तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, काल एहसान अन ताबुदुल्लाह कन्नका तराह, नमाज ऐसे अदा कर जैसे तू खुदा को देख रहा है। नमाज ऐसे अदा कर जैसे तू खुदा को देख रहा है। बोलो, आपने खुदा को कभी देखा है? किसी ने आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है? नमाज ऐसे अदा कर जैसे तू खुदा को देख रहा है। चलेंगे अविश करने की बारगाह में, उनसे पूछेंगे, आपने खुदा को देखा है? अविश करनी बोलेंगे, पूरी रात में एक सजदा करता था और एक सजदे में एक बार सुभान रब्बियल आला कहता था। पूरी रात में एक सजदा और पूरे सजदे में एक बार सुभान रब्बियल आला, पूरी रात में एक बार सुभान रब्बियल आला। एक ऐसा सुभान रब्बियल आला तब इस करने बोलते हुए नजर आएंगे, मैं सजदे में जाता था जब तक खुदा की पाकी और उसकी बुजुर्गी, उसकी बरतरी, उसकी किबरियाई को नहीं देखता था, तब तक सुभान रब्बियल आला नहीं कहता था। इमाम आजम फरमाते हैं, मैंने 100 बार खुदा को देखा है। इमाम आजम फरमाते हैं, मैंने 100 बार खुदा को देखा है। और गौसुल आजम फरमाते हैं, मैंने कई बार खुदा को देखा है, मैंने कई बार खुदा को देखा। ये तो खास है, ये तो खासुल खास है, ये औलिया अल्लाह की शान है। खुदा को नमाज में देखना औलिया अल्लाह की शान है। इसलिए सरकार के इल्म गैब पर, नजर मुबारक पर, कौल मुबारक पर कुर्बान जाइए। आपने ये नहीं फरमाया नमाज अदा कर और नमाज में खुदा को देख, कहा क्या? सरकार ने फरमाया नमाज में अदा कर, नमाज में खुदा को देख, नहीं कहा। ऐसे अदा कर जैसे तू खुदा को देख रहा। सरकार का मालूम है तुम नहीं देखते, वरना कहते नमाज अदा कर, नमाज में खुदा को देख, कहते नहीं। नहीं फरमाया, आपने कहा ऐसे अदा कर जैसे तू खुदा को देख रहा है। फिर फरमाते हैं आगे, मालूम है नहीं देख पाता, अगर तू नहीं देख रहा है तो कम से कम इतना तो जान ले खुदा तुझे देख रहा है। इतना जान ले खुदा तुझे देख रहा है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जब बंदा नमाज में खड़ा हो जाता है तो खुदा फरमाता है, क्या तुझे मेरी सी अच्छी खूबसूरत कोई चीज नजर आई कि दिल और दिमाग तेरा पूरा भटक गया? इमाम हसन बसरी वो बसरी हैं, उनके पास एक नुसरानी आया, उनके पास एक नुसरानी आया, कहा मैं ईमान लाऊंगा, मैं ईमान लाऊंगा, लेकिन क्या आप मुझे जन्नत में जाने की जमानत देते हैं? क्या आप लिख कर देंगे कि मैं जन्नत में जाऊंगा? इमाम हसन बसरी ने कागज मंगाया, कहा ईमान ले आ। ईमान ले आया, आपने लिख कर गया कि तू जन्नती है, तू जन्नती है। और उस वो नुसरानी मुसलमान होकर लोगों से कहा, ये कागज मेरी कब्र में दफना देना, ताकि कल खुदा की बारगाह में लेकर उठूंगा, अगर जन्नत में नहीं गया तो इनसे झगड़ूंगा। 40 दिन हुए, 40 दिन के फातिहा हुए। इमाम हसन बसरी उसकी कब्र की जियारत हो गए, उसकी कब्र की जियारत हो गए। जाकर देखा वो पर्चा कब्र के ऊपर पड़ा हुआ है, वो पर्चा कब्र के ऊपर पड़ा है जो अंदर दफनाया गया था।
اور اس میں لکھا ہوا تھا خدا مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا، اب تمہارے پرچے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کسی کی بارگاہ میں بک جاتے ہیں، کسی کی بارگاہ میں بک جاتے ہیں اور بک کر اس کے پاس کوئی شجرہ وصول کرتے ہیں تاکہ ہماری قبر میں دفنایا جائے اور خدا ہمیں بخش دے، خدا ہمیں بخش دے۔ ہمارے پیر ہی کا نام ہوتا ہے کیا؟ پیر کا پیر، پیر کا پیر، پیر کا پیر، پیر کا پیر جا کر رسول تک پہنچتا ہے۔ دہلی میں ایک مارواڑی کی دکان تھا اور وہاں پر ایک فقیر گانجا پی کر شراب پی کر آیا، کہا میرا سوال پورا کر دے نہیں تو دلی جلا کر خاک کروں گا۔ مارواڑی کہنے لگا تو گانجا پینے والا، تو شراب پینے والا، تو کیا دلی جلا کر خاک کرے گا؟ میں دیتا ہوں اتنے لے کو جا، تو مانگے اس وقت میں دیتا نہیں۔ 3 دن کا سوال ہے، 3 دن میں نہیں دیا تو دلی جلا کو خاک۔ تیسرا دن آ گیا، تیسرا دن آج شام تک نہیں دیا تو دلی جلا کو خاک۔ مارواڑی کہا تو کیا جلانا والا، شراب پینے والا؟ اتنے میں وہاں سے ایک بزرگ جاتے تھے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، وہ بزرگ اس مقام پر پہنچے اور یہ فقیر کہہ رہا ہے جلا کر خاک کروں گا، تو نہیں دیا تو جلا کر خاک کروں گا۔ انہوں نے سنا، مراقبہ کر لیا اور مارواڑی سے کہا اس کا سوال پورا کر دے، اس کا سوال پورا کر دے۔ اس نے سوال پورا کر دیا۔ شام کو جب واپس آئے تو پکڑا اور کہا حضرت یہ تو گانجا پینے والا، شراب پینے والا، یہ کیسے جلائے گا؟ اور آپ نے کہا مجھے دے دے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اسے دیکھا نالائق ہے، اس کے پیر کو دیکھا نالائق، اس کے پیر کو دیکھا نالائق، اس کے پیر کو دیکھا نالائق، اس کی 5ویں پشت کا جو پیر ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کیسا بھی ہے لیکن سلسلہ میرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت۔ سوال پورا نہیں ہوگا تو ہمارے سلسلے کو بٹا لگے گا۔ یہ جو لائن کنیکشن ہے نہیں، بیچ میں ایک لائٹ اڑ گیا، بیچ میں ایک لائٹ اڑ گیا، دوسرا لائٹ بھی اڑ گیا، تیسرے کھمبے کا لائٹ اڑ گیا، تو جا کو شام کو وائر پکڑیں گے کیا؟ تین لائٹ آؤٹ ہوئی، پکڑ دیں کیا؟ وائر میں تو کچھ دستا ہے کیا؟ کرنٹ دستا ہے؟ وائر، تانبے کی وائر، لیکن پکڑیں گے تو جلا کر خاک کر دے گی، پکڑیں گے تو جلا کر خاک کر دے گی۔ اس میں بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا لیکن اندر نور محمد مصطفیٰ کی ہے اور کنیکشن نہیں ہے، بیچ میں کنیکشن نہیں ہے تو 500 کا لائٹ لگے گا نہیں لگے گا، کنیکشن ہے 0 کا لائٹ ہے تو لگے گا اور جلا کر خاک کر دے گا، کنیکشن نہیں ہے تو نہیں لگے گا۔ اس لیے کنیکشن جوڑ دینا، ہو یا نہ ہو سلسلے میں اپنی لائن میں کنیکشن جوڑ دینا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور مجھے بھی کامیاب کر دے گا۔ کا احسان کیا؟ احسان کیا ہے؟ کہا ایسے نماز ادا کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اگر کم سے کم نہیں تو اتنا جان لے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا میں جنگل میں مال دفنا کر آیا ہوں اور جگہ بھول گیا ہوں، کوئی تعویذ دیجئے، کوئی دعا دیجئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا جا 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، جا 2 رکعت نفل نماز پڑھ۔ گیا نفل نماز پڑھنے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھا تھا، جگہ یاد آیا، فوراً گیا مال لے کر آیا، کہا حضرت تم نے کیوں معلوم میں نماز میں کھڑا تو معلوم ہوتا ہے تو نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، پوری نہیں پڑھا، نادان مجھے معلوم تھا تو جب نماز میں کھڑا جا ہوگا تو شیطان تجھے جگہ یاد دلائے گا، شیطان تجھے جگہ یاد دلائے گا۔ تو ایسی نماز پڑھ کے دل میں دنیا میں دولت کی، مال کی، عورت کی، دنیا کی محبت نہ ہو، اپنا دل پورا خدا کی طرف لگا لے۔ سورہ لقمان پڑھ لیے تو معلوم ہوگا تتبع سبیل من اناب الی، اس کی راہ اختیار کر جس نے اپنا رخ میری طرف پھیرا ہے، اس کی راہ کو اختیار کر جس نے اپنا رخ
میری طرف پھیرا ہے، معلوم کسی مرشد کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے اور دامن سنبھال لے، تتبع سبیل من اناب لائے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسے اور ایمان لائے، ایمان لاؤ جیسے اور ایمان، جیسے صدیق، فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، بلال، عبد الرحمن عوف، ایسے ایمان لاؤ جیسے غوث الاعظم ایمان لائے، خواجہ غریب نواز، امام اعظم، قطب الدین بختیار کاکی، آپ کے قرب و جوار میں جو اللہ والے آرام فرمائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ۔ اگر دعا سکھاتا قرآن سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کافی تھا کیا نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم اگر کہہ لیتے تو کافی تھا کیا نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راستے پہ چلا، تو کیا خدا سیدھی راستہ جانتا ہے کہ نہیں؟ اتنا دعا خدا کی بارگاہ میں مانگنا کافی تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پہ چلا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اور صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غوث الاعظم کے راستے پہ چلا، خواجہ غریب نواز کے راستے پہ چلا، اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے راستے پہ چلا، خواجہ بندے نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے راستے پہ چلا، سیدنا فتح علی رحمت اللہ علیہ کے راستے پہ چلا، اس لیے کہ ان کا ایمان کامل ہے۔ فرمایا احسان کیا ہے؟ ایسے نماز ادا کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اگر نہیں تو کم سے کم اتنا جان لے خدا تیرا رکوع دیکھ رہا ہے، تیرا سجدہ دیکھ رہا ہے۔ عبادت کرنا، ایک بار اللہ کو پکارنا خدا کی رضا میں، لیکن آپ نماز نہ چھوڑنا۔ آپ کہیں گے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، دل ادھر بھی بھٹکتا ہے ادھر بھی بھٹکتا ہے، آپ نماز چھوڑیں گے، مسجد کو جانا چھوڑیں گے، معاذ اللہ ایسا نہیں کریں گے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، خدا فرشتوں سے کہتا دیکھو کیا اس نے مجھے دیکھا ہے، کیا اس نے میری جنت دیکھی ہے، میری جہنم دیکھی ہے؟ نہیں آیا، اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اسے بخش دیا، گواہ رہو میں نے اسے بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا اس کا خیال ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، تو رب کہتا ہے ارے خیال بھٹک رہا ہے لیکن آیا تو میری بارگاہ میں، آ تو گیا، جب قدم رکھا ہر ہر قدم پر میں نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں۔ نختبو ما قدم ما سر، وہ جو قدم رکھتے ہوئے آیا میں گنتا ہوا اسے لکھ لیا ہوں، مسجد تک آنے تک اس کے قدم لکھ لیا ہوں، اور ہر قدم پر میں نے نیکی بھی لکھی ہے اور اس کے گناہوں کو مٹایا بھی ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ میرے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایسا کچھ تو لکھ کو دو، میرے پاس تو نیکی نہیں، ایسا کچھ تو لکھ کو دو کہ قبر میں چھٹکارا، قیامت دن چھٹکارا، نہ حساب ہو نہ کتاب ہو۔ میرے آقا نے کاغذ لی اور کاغذ پر لکھا میں کریم کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں کریم کی بارگاہ میں آیا ہوں، رزاق کی بارگاہ میں آیا ہوں، غفار کی بارگاہ میں آیا ہوں، ستار کی بارگاہ میں، سبحان کی بارگاہ میں آیا ہوں، توشہ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں آتے وقت توشہ نہیں لایا، اس لیے کہ جس کے پاس آیا وہ خود کھلانے والا ہے، اس لیے میں توشہ نہیں لایا۔ سرکار نے لکھ دیا، وہ قبر میں دفنا لیا اور بخشایا گیا، سرکار کی اس قول مبارک پر بخشا گیا۔ اسی لیے ہم سجدہ دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے دیکھ کر بخش دے، اپنی رحمت سے دیکھے اور ہمیں بخش دے۔ یہ گنہگار مرتے تم اپنے غسل دینے والوں کو کہا مجھے غسل دینا، غسل دینے کے بعد میں میری داڑھی کو، میرے سر کے بالوں کو چننا لگانا، لگایا گیا۔ پھر فرشتے قبر منکر نکیر آئے، پوچھنے لگے کہا کیا چک کو ہمیں دوسرے قبر میں آئے گا؟ مرتے تم اس کے بالا کالے اتے اور یہاں سوجلے ہیں۔ رب نے فرمایا تم نے دنیا میں بھی پھنسایا یہاں بھی پھنسایا، اسے حساب کتاب پوچھو مت، اسے سوال جواب مت پوچھو، اس لیے کہ اس نے ایک حدیث سنی تھی کہ جو ایمان پر بوڑھا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لینے میں شرماتا ہے، اس لیے اس نے اپنے بال سفید کر دیے تھے۔ وہ میری رحمت سے امیدگار ہے اور میں نے اسے بخش دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید ہے کہ اس کے ہو جاؤ،
खुदा की बारगाह में हो जाओ। अब पूछा काल या रसूलुल्लाह मता सा, या रसूलुल्लाह कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। अब आया देखो इल्म गैब, कयामत कब आएगी। अब सरकार ने फरमाया काल मल मसूलु अनहा बि आलमा मिनस साइल, जो सवाल करने वाला है उससे ज्यादा मैं नहीं जानता। जो सवाल करने वाला है वो जितना जानता है उतना ही मैं भी जानता हूं। इनमें ये नहीं, सरकार ने ये नहीं फरमाया मैं इल्म गैब नहीं जानता, मैं कयामत के बारे में नहीं जानता। ये नहीं, अल्फाज क्या है काल मल मसूलु अनहा बि आलम मिनस साइल, जितना साइल जानता है उतना ही मैं जानता हूं। अब उलमा बैठे हैं, मेरे सामने बैठेंगे नहीं, इधर भी बैठे हैं, फिर तरीकत बैठे हैं, सामने बैठे हैं। अब मेरे सीने से सीने लगाना, मेरे दिमाग से दिमाग, मेरे दिमाग से दिमाग को लगाना और बोलना मैं कितना जानता हूं, उन्होंने कितना जानता हूं। समझ में आता है क्या। मेरे दिमाग को दिमाग लगाए और दिन रात एक महीना भर बैठे तो मेरे दिमाग में क्या क्या है मालूम है क्या। फोड़ को देखे तो गोश्त का टुकड़ा, सिर काट को देखे तो गोश्त का टुकड़ा, कुछ भी लिखे सुने। मेरे ब्रेन के ऊपर कुछ लिखे सहेगा, हाफिज कुरान है, इसके दिमाग के ऊपर कुरान हिफ्ज है क्या, लेकिन अंदर है, गैब में है। जो कुछ है वो गैब में है। सरकार फरमा रहे हैं आने वाला जितना जानता है मैं उतना जानता हूं। आने वाला जो इल्म लेकर आया है वो गैब में है। आने वाला कौन है गैब में, उसका इल्म गैब में, वो क्या पढ़ा गैब में, कितना जानता है गैब में। सरकार फरमाने वाला जो जानता है वो मैं जानता हूं। इल्म गैब है, इल्म गैब है। और फिर फरमाते हैं गैब नहीं जानता। सरकार फरमान आने वाला जो जानता है वो मैं जानता हूं। आने वाला बोला है कि मैं यो जानता हूं। आने वाला सरकार को बताया है कि मैं इस बात का मुझे इल्म है, उस बात का मुझे इल्म है, मैं वो जानता हूं, मैं वो जानता हूं। बताया है? नहीं बताया, पूछ रहा है। सरकार ने फरमाया आने वाला जो जानता है मैं जानता हूं। ये इल्म गैब मुस्तफा है, इल्म गैब मुस्तफा है, ये खुदा के बताने से है। कुरान है मा कन्नल्लाहु लियुतलिकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यस्तबी मिन रुसूलिही मन यशा। अल्लाह ताला गैब नहीं देता लेकिन रसूलों में से जिसे चाहता है उसे देता है। सरकार फरमाते हैं सब दुश्मनों से भी बड़ा मेरा दुश्मन, मूसा के दुश्मन से बड़ा मेरा दुश्मन, इब्राहिम के दुश्मन से बड़ा मेरा दुश्मन, दाऊद अलैहिस्सलाम के दुश्मन से बड़ा, सारे नबियों के दुश्मन से बड़ा मेरा दुश्मन है। कौन? अबू जहल। कौन? अब आगे हदीस में कौन कहां मरेगा अल्लाह जानता है। कौन कहां मरेगा अल्लाह जानता है। पूछ लो, उलमा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, पूछ लो, सुना भी होगा। इसलिए कि जलील कदर उलमा स्टेज पर रौनक अफराज होकर दांडीली को सरफराज फरमाए। बहुत बड़े होनहार जलील कदर अजमत वाले उलमा के बयानात आप सुने हैं और इससे आपके सीने पुरनूर है, जानते हैं। जंग बदर है, गज़वे बदर है। गज़वे बदर के मैदान में खत्म होने से पहले सरकार फरमा रहे हैं कि फलाना फलाना काफिरों का सरदार यहां मरेगा, अबू जहल यहां मरेगा। सरकार ने निशान दिया अबू जहल यहां मरेगा। और जब अबू जहल को हजरत माज और मऊज ने मारा, गर्दन काटी, अब मरना तो यकीनी था लेकिन घिसेट रहा था, अपने बदन को घिसेट रहा था और कह रहा था मैं मरूंगा लेकिन वहां नहीं मरूंगा जहां सरकार ने बोला है। मैं मरूंगा लेकिन वहां नहीं मरूंगा जहां सरकार ने बताया है। और घिसेट घिसेट कर वहां ही मरा जहां सरकार ने बताया, वहां ही मरा जहां सरकार ने बताया। और जब मरा, जंग खत्म हुई, सरकार पहुंचे और कहा जो मैंने तुझे समझाया था वही हुआ, मैं तुझे समझाया था, तेरे किए का तुझे बदला पूरा मिल गया। अब वो अबू जहल सुन रहा है कि नहीं गैब में है, ये तो मुर्दा है।
अब मुर्दे का बोलेंगे, आप गली मुर्दे के साथ बात करेंगे क्या? बोलते हो उससे, ए रहीम क्या क्या बोलता है तेरी जूरू को? मरने के बाद में पूछो तेरे बेटा ना क्या बोलता है, कहाँ कहाँ बैलन सरके, क्या बोला नहीं क्या नहीं, अचानक हार्ट हुआ मर गया, पूछते ही क्या? नहीं पूछते। या अबू जहल मर कर पड़ा है और सरकार बोले मैं जो तुझे बोला तेरा बदला पूरा पूरा पाया। वो अबू जहल की कैफियत का है, गैब में है। वो सुनता है क्या? नहीं, गैब में है। देख रहा है क्या? नहीं, गैब में है। जो उसे मिल रहा है वो गैब में, और सरकार बता रहे हैं। और साहबा पूछ रहे हैं क्या ये सुनता है? साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या सुनता है? मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे से ज्यादा सुनता है, तुम्हारे से ज्यादा सुनता है। अब सरकार साहबा का सुनना, ये काफिर मुर्दे का सुनना, दोनों मुआवजा करना, ये कितना सुन रहे हैं और वो कितना सुन रहा है, ये गैब में है। इसकी कुव्वत समात गैब में है, इनकी कुव्वत समात गैब में है। कोई बहुत अच्छा सुनता है, कोई दूर से सुनता है, कोई करीब सुनता है, कोई चौंडा होता है कान लगा तो नहीं सुनता, गैब में है नहीं। लेकिन सरकार साहबा की समात, अबू जहल की समात सुन रहे हैं और बोल रहे हैं तुम्हारे से ज्यादा सुनता है। काफिर मुर्दा सुनता है तो गौसे आजम नहीं सुनते? काफिर मुर्दा सुनता है तो क्या गौसे आजम नहीं सुनते? अल्लाह ने उन्हें पहले ही सिखाया है, खुदा ने पहले ही गौसे आजम को ट्रेनिंग दिया है। कभी कभी आपको सवाल होता है कि गौसे आजम महबूब सुबानी तुम्हारे दांडेली में कहो है क्या? तुम्हें 11 यहां मनाते कि नहीं? हाँ, किसी की दरगाह है कि नहीं? दांडेली में किसकी दरगाह है? दरगाह है? मज़ार नहीं। ठीक है कि पीरे तरीकत तो है कि शेख है या नहीं? है। खिलाफत वाला है, कादरी है, चिश्ती है, कादरी है, नक्शबंदी है। अच्छा, तो सवाल उठता है क्या तुम्हारे दांडेली में गौस पाक है क्या? उन्होंने बगदाद में, उन्होंने कहा बगदाद में। अब बगदाद वाले की बात सुनो, गौर करो। मैं आपको गौर करने की दावत दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि हर सवाल का जवाब आप दे सकें, इस सवाल का जवाब आप दे सकें। इंडिया में आए क्या गौस पाक? इंडिया में आए क्या? नहीं आए। पी की 11 मनाते हैं। सवाल है नहीं, महबूब सुबानी यहाँ आए क्या? नहीं आए। बी कहां का? कादरी है, कादरी यहाँ का कहां से आया? सवाल उठता है। लेकिन गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं अन्ना तहते कदमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलियाए तहते कदमी, मैं सरकार के कदमे मुबारक के नीचे मेरी गर्दन है और सारे औलिया की गर्दन पर मेरा कदम है। सारे औलिया की गर्दन पर मेरा कदम है। तो बोलो इंडिया में कितने औलिया अल्लाह हैं? इंडिया में कितने औलिया अल्लाह हैं? कितने मशाइख हैं? सबके गर्दनों पर गौस का कदम है। जब गौस का कदम है तो उनका आना जरूरी है। जब तक मेरा कदम नहीं लगता वो वली बनता ही नहीं। जब तक गौस का कदम नहीं लगता तब तक वो वली नहीं बनता। हर तरीकत वाले को, हर तरीके वाले को गौस की जरूरत, चाहे कोई भी हो, हर तरीके वाले को गौस के लाजम की जरूरत है। बगदाद की सरजमीन में गौस लाजम ऐलान फरमा रहे थे मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पर। और ख्वाजा गरीब नवाज कहां थे? खरासान में। ख्वाजा गरीब नवाज कहां थे? खरासान में। ऐलान कहां हुआ? बगदाद में। ख्वाजा गरीब नवाज खरासान में। तो क्या मोबाइल सिस्टम आता क्या? इंटरनेट तब न था। खरासान में ख्वाजा गरीब नवाज ने सुन लिया और कहा मेरा जिगर, मेरा सर, मेरे आंखों पर, मेरे चेहरे पर, मेरे बदन पर, मेरे गर्दन पर तेरा पाय मुबारक है। जवाब कहां से मिला?
जवाब खरासान से दिया गया और बगदाद में गौसे आजम ने सुना। मैंने जब ऐलान किया, मेरे ऐलान का जवाब देने में खरासान की सरजमीन में मोइनुद्दीन सबसे आगे बढ़ गया, इसलिए मैं उसे ख्वाजाओं का ख्वाजा और हिंद का राजा बना देता हूं। इस फैज और तर्जुमान है गौसे आजम का, ये फैज आलम है गौस महबूब सुभानी का। ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते थे, जुबान से जिक्र करते थे, दिल में नहीं समाता था। गौसे आजम की बारगाह में फरियाद कर बैठे, ख्वाब में गौसे आजम तशरीफ लाए और अपना ये हाथ उनके सीने पे मारा तो ये जिक्र जुबान से भी दिल से भी सुबह को जारी हो गया। इसीलिए उन्हें नक्शबंदी कहते हैं, इसलिए कि गौसे आजम के हाथ का नक्श उनके सीने पे बैठ गया। ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी के सीने पर गौसे आजम सुबह होने के बाद देखा कि हाथ बैठ गया है। तो हर तरीकत वाले को गौसे आजम की जरूरत है। उन्होंने कहा हर वली की गर्दन पर मेरा कदम है, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, दीदे कुर को क्या है नजर, क्या देखे। अच्छा, किसान जब दाना बोता है खेत में तो खड्डा खोदता है कि नहीं? जारी पेरने लगे या घी पेरने लगे, खड्डा खोदता है कि नहीं? खड्डा खोद कर अंदर दाना डाला कि नहीं? खबर खोदा, दाना डाला, उसके ऊपर मट्टी डाला, बोलो दाना मरया क्या रहा? तो दाना मरया क्या रहा है? क्या रहा? मरया दाना है, मरया था एकला, लाया कत्ते ऊपर दाना, फिर एक भुट्टा उठा तो 100 दाने, 50 दाने, 700 दाने, 200 दाने, जत्ती उसकी पावर बत्ते दाने। और जो सड़का दाना, जिसके दिल में इसके मोहम्मदी नहीं है, वो सड़ गया। एक नाच गाने की महफिल चली थी, डांस भी होना था, गाना भी चला था। वहां एक क्योंडा और अंधा बैठे, बच्चे दोनों सामने सामने बैठे थे। क्योंडा अंधे को बोल लगे, क्या मस्त डांस है रे। अंधा बोले से डांस कहाँ है? क्या मस्त आवाज रे, भारी आवाज है। तक चौंडा और अंधा दोनों लड़ने लगे। चौंडा कहते हैं डांस भारी है, अंधा कहते हैं नहीं नहीं आवाज बहुत भारी है रे, म्यूजिक बहुत भारी है। दोनों लड़ने लगे, आंख वाला भी और कान वाला भी आया, अरे यहाँ डांस भी है और गाना भी है, तो हमारी आंख का कसूर, हमारे आंख का कसूर, हमारे कान का कसूर है। आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे कुर को क्या है नजर, क्या देखे। आंख वाले जो औलिया अल्लाह है देख लेते हैं कि कब्र में क्या चल रहा है, कब्र में क्या हो रहा है। ये गौसे आज़म मां के पेट में है। एक फकीर आया, मां के पेट में है, एक फकीर आया, सवाल किया, घर में आपकी मां के लिए आप पेट में हैं, अब हैरान में हैं, तो कोई आदमी नहीं है, अगर नहीं दूंगी तो फकीर नाराज होकर चला जाएगा, दूंगी तो चेहरा दिखाना पड़ेगा, इसलिए आप सोचकर दरवाजे के दीवार के आड़ में अपना हाथ निकालकर फकीर को रोटी दे दी। फकीर सोचा औरत अकेली है, नियत बदल गई और बदलते हुए नियत लेकर अंदर आया, बदलती हुई नियत लेकर अंदर आया। उसे क्या मालूम था ये गौसे पाक का घर है, उसे क्या मालूम था ये वो घर है जिसमें सरकार का खून मुबारक है, उसे क्या मालूम था यहाँ बीबी फातिमा का मुबारक दूध पलता है, उसे क्या मालूम था यहाँ अली का खून है, उसे क्या मालूम था। अंदर आया, गौसे आज़म माँ के पेट में है, गौसे आज़म माँ के पेट में है। एक बार गौसे आज़म माँ के गोद में रोने लगे तो माँ ने गाल पर मारा, तो माँ को कहा, माँ क्या मेरा एहसान भूल गई? माँ ने कहा, तू क्या मेरे पर एहसान करे, मैं तुझे दूध पिलाने लगा। गौसे आज़म ने कहा, मालूम है फकीर आया था,
फकीर अंदर आया था, जमीन से शेर नमूदा हुआ और फकीर को खाकर जमीन में चला गया। मालूम है माँ वो कौन शेर था? वो तेरा शेर था, वो तेरा शेर गौस था जो आया और फकीर को खाकर चला गया। गौसल आजम माँ के पेट में, माँ के पेट से जमीन में, जमीन से ऊपर, ऊपर से जमीन में, जमीन से फिर माँ के पेट में। पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने आपको ट्रेनिंग दी है। माह रमजान मुबारक का 29वां महीना, वो गौसल आजम जो माँ के पेट से जमीन में, जमीन से ऊपर, फिर जमीन में, फिर माँ के पेट में, पैदा होने के पहले जा सकता है और आ सकता है। वो गौसल आजम बगदाद से डांडेली आ भी सकता है, जा भी सकता है। अब उलमा आपको क्या फतवा देंगे? शाबानुल माज़म की 29वीं तारीख है, चांद नजर नहीं आया, क्या कहेंगे? 30 दिन पूरे करो, चांद नजर नहीं आया, आसमान पर बादल है, आप कहेंगे चांद नजर नहीं आया, कहीं भी नजर नहीं आया, 30 दिन पूरे करो, उसके बाद में रोजा रखेंगे। बगदाद में शाबानुल माज़म की 29वीं तारीख को चांद देखा गया, चांद नजर नहीं आया, लेकिन मालूम हुआ, उलमा भी हैं, मुफ्तियान शरीफ भी हैं, उफ़ाज़ भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, सबने सोचा चलो शरीफों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, जाकर पूछेंगे कि उसका क्या हाल है। गौसल आजम की माँ के पास बगदाद के उलमा मुफ्तियान शरीफ आए और कहा आज तुम्हारे बच्चे का क्या आलम है? तो गौसल आजम की माँ ने कहा आज सुबह शादी से लेकर मैं बच्चे को लाख पछताने मुबारक देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पीता नहीं। बगदाद मोहल्ला में ऐलान कर दिया कि माह रमजान का महीना शुरू हो गया, आंख वाले न देखे, गौसल आजम ने चांद देख लिया। ये अल्लाह वालों की शान है, ये खुदा के बताने से ये इल्म गैब जान लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन क्या शर्त है? अल्लाह का देना, अल्लाह का इल्म जाती है और इनका अताई है। पानी नहीं है साहबा के पास, साहबा के पास पानी नहीं है। कहा या रसूलुल्लाह नमाज का वक्त हो गया, पानी मौजूद नहीं है। तो मेरे आका ने हजरत अली मुर्तजा को बुलाया और कहा जाओ उस पहाड़ के पीछे एक शख्स अपने ऊंट पर सवार 2 मशकीज़ें पानी भरकर ले जा रहा है, उसे बुला लेकर आओ। उस पहाड़ के पीछे एक काला कलोटा, सरकार क्या बयान फरमा रहे हैं? एक काला कलोटा 2 मशकीज़ें लेकर जा रहा है, उसे बुला लेकर आओ। अली मुर्तजा गए, ये नहीं कहा पहाड़ इतने दूर, आपको क्या मालूम? क्या पूछा क्या कितनी दूर पहाड़ और काला कलोटा? आपके पास क्या दूरबीन है कि क्या है? कुछ भी नहीं है, आपको कैसे मालूम? चले गए, जाकर देखा तो सचमुच काला कलोटा जा रहा था। कौन जा रहा था? सचमुच काला कलोटा जा रहा था। 2 मशकीज़ें साथ में थे, ऊंट पे सवार जा रहा था और फरमाया हमारे आका ने तुझे बुलाया है। वो चला आया, वो चला आया, आपने उसके मशकीज़े में सारे सहाबा को पानी दिया, गुस्ल के लिए, वजू के लिए, पीने के लिए पानी दिया और फिर उससे कहा ले जा तेरे मशकीज़े। जब वो काला कोलोटा देखा, सब सहाबा पानी पिए, गुस्ल नहाए, वजू करे और पानी मशकीज़े पूरे फुल भरे सही, सब पानी भी पी रहे हैं, गुस्ल भी नहाए, पिए भी, वजू भी किया और पानी बचा। अजब हो गया। और फिर अपने मशकीज़े में देखा काला कलोटा था गोरा हो गया। आया था काला, हुआ क्या? गोरा हो गया। सरकार की जब नजर पड़ती है, अल्लाह वाले की जब नजर पड़ती है तो काला गोरा हो जाता है। जिस तरह से हमारे औरतें कहते हैं नहीं, कल बाजार में गई थी, बंगड़ियां लई, उन्हें आई देखी मेरे बंगड़ियां फुटे। एक नजर ऐसी है बंगड़ियां फूट जाते हैं, अच्छा बीमार हो जाता है, और एक अल्लाह वालों की नजर है कि बीमार अच्छा हो जाता है। देखा मशकीज़े में देखा था काला कलोटा
गोरा हो गया, कहा ये तो औरज हुआ। सरकार से कहा ईमान लाया और कहा मैं यहां से नहीं जाऊंगा, अभी मैं यहां से नहीं जाता। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं जा, तू पानी की मटकियां देखो तेरे मालिक को दे, बाद में आ जा। उन्हें बोला मैं अभी यहां जाता नहीं, नहीं बोला जा तू जा। अब ये बस पानी की मटकियां लेकर गया, अंदर गया, मालिक पूछने लगा तू कौन आए? मालिक कहने लगा मैं तुम्हारा नौकर। मेरा नौकर? ऐसा गोरा? मेरा कौन सा नौकर से नहीं, तू कौन है बोल? मैं काला था, मैं तुम्हारा नौकर, काला तो गोरा हुआ। अरे वो कैसे? वहां है सरकार, उनकी नजर करम हो गई, मैं काला से गोरा हो गया, बेईमान से ईमान वाला हो गया, जहन्नमी से जन्नती हो गया, जहन्नमी से जन्नती बन गया। कहा जब तू काला गोरा हुआ तो मैं काला तो रहूं क्या? मालिक बोले तू काला गोरा हुआ, जहन्नम से जन्नती है, तो मैं कैसे रहूं? मैं भी, मेरा दिल भी काला है, मैं भी गोरा करना चाहता हूं, मुझे भी उनकी बारगाह मिले। सर वो भी आया, मुसलमान हो गया। सरकार जानते थे, चाहते तो गुलाम को रख ले सकते थे, कहा नहीं वापस जा, इसलिए कि वहां भी ईमान की दौलत मिलने वाली है, तेरे मालिक भी ईमान से मुशर्रफ होने वाला है, इस सरकार की नजरे खैर है। हजरत अबू सलमा इब्न याकूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरियां चराते थे, जाकर जंगल में देखा एक भेड़िया बकरी पकड़ा, आपने जाकर अपनी बकरी छुड़ा ली, अपनी बकरी छुड़ा ली। भेड़िया कहने लगा ये क्या इंसान है, मेरा रिज़्क छुड़ा लेता है। भेड़िया बात करने लगा ये क्या इंसान है, मेरा रिज़्क छुड़ा लेता है। हजरत अबू सलमा इब्न याकूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताज्जुब पड़ गए, ये कैसा भेड़िया बातें करता है, जो कैसा भेड़िया बातें करता है। तो भेड़िया कहने लगा मेरा बात करना ताज्जुब नहीं, मेरा बात करना ताज्जुब की बात नहीं, जहां सफा और मरवा की पहाड़ी के दरमियान एक खुदा का बरगजीदा नबी पैदा हुआ है, जो यहां पर रहकर फर्श पर रहता है, अर्श की बात करता है, गैब की बात सुना रहा है। भेड़िया जानता है सरकार इल्म गैब जानते हैं, तो जो नहीं मानता वो भेड़िया से बदतर है। इसलिए भेड़िया जानवर के होते हुए भी ईमान रखता है, ईमान रखता है। वक्त भाई तो वक्त ज्यादा हो रहा है, अल्लाह ताला हमारे ईमान मजबूत फरमाए। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी बंदे नाचीज फकीर हकीर को बुलाया जाएगा तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह ताला आपका ज़ौक़ और शौक़ ईमान सलामत रखे, उस हबीब के सदके मेरा भी ईमान सलामत रखे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाकर हमें जन्नत दे या न दे, नबी का चेहरे अनवर की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा दे। उनकी लुआबे मुबारक के दो बूंद, ज़ुल्फ़ अंबर का साया, दामने मुबारक की ठंडी हवा हमें नसीब फरमाए। तो जो भी टीपू सुल्तान ट्रस्ट के नौजवान हैं, सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं और सैयद मोहम्मद शफी साहब अशरफी, इनके जो मुरीद हैं, जो इंतज़ाम किए हैं, स्टेज सजाए हैं और जो भी इंतज़ाम के नौजवान के हौसलों को मैं सलाम कहता हूँ। अल्लाह ताला इनके हौसलों को बुलंद और बाला फरमाए, यहाँ भी जवान रखे, कब्र में भी जवान रखे और जब क़यामत उठे तो वो भी जवान उठे, यहाँ भी जवान उठे, वहाँ भी जवान उठे। इसलिए अभी बोल आपने सुना जो आशिक मोहम्मद होता है वो बूढ़ा नहीं होता, वो जवान होता है। और हम इंशाअल्लाह सारे के सारे जवान हैं, हम सारे के सारे जवान हैं। और सरकार ने एक बुढ़िया को फरमाया, बुढ़िया ने पूछा तू क्या मैं क्या जन्नत में जाऊंगी? सरकार ने फरमाया बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, रोने लगी। वो रोने लगी तो सरकार ने फरमाया खामोश हो जा, बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, बुढ़िया जवान होकर जाएगी, बुढ़िया जवान होकर जन्नत में जाएगी। तो आप सब बूढ़ा हो या कुछ भी हो, जो सुन्नी मुसलमान है, आशिक मुस्तफ़ा है, वो जवान होकर जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला आपके इश्क़ रसूल सलामत रखे और आपकी दुआओं से मेरा इश्क़ रसूल सलामत रखे और ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर उठाकर खातिमा बिल खैर फरमाए।
آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی جو بھی جائز مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اسی عشق رسول میں زندہ رکھے، سائے رسول میں زندہ رکھے، اسی سائے میں اٹھائے، اسی سائے میں خاتمہ بالخیر فرمائے۔ غوث الاعظم خواجہ غری نواز، خواجہ باقی باللہ نقشبندی، شیخ شہاب الدین سروردی، جتنے بھی طریقت کے مشائخ ہیں سب کا سایہ ہم پر رکھے۔ اور قرآن ارشاد فرماتا ہے تسیموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر پکڑو۔ قرآن کے ارشاد ہے اے سنی مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بات تسیموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ایک ہو کر پکڑ لو۔ اگر ایک ہو جاؤ گے تو کوئی تمہیں مٹھا نہیں سکتا، کوئی تمہیں مٹھا نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب سنی العقیدہ مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے اور آپس کے گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، زبان کے فحش بکنے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اسی عشق رسول میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔